अच्छा, ऐसा लास्ट टाइम मुझे याद है we start with the chapter 1, we also covered chapter number 2. So again I will give you a brief review of chapter number 2. Chapter number 1 is basically chapter 0. So it is a repetition of same concepts. It is a binary arithmetic and some few other concepts which you know. So chapter 2 is very important. So that's why I will give again I will give a review of chapter number 2 and then we'll move to the chapter number 7. So chapter number 2 is all about AVR core. In microcontroller, in AVR microcontroller, the central part of the AVR microcontroller is AVR core, where basically AVR CPU is located. So this whole chapter is about the AVR core and what are the basic properties, what are the basic features and basic operations of the AVR core. So if you look at the AVR core, this diagram basically shows that the AVR core is basically consists of ALU and it has status register. So SREG is a status register. There is another register which is called program counter. So and then there is a instruction register, and within the instruction register there is an instruction decoder, and then there are some general purpose registers which are 32 general purpose registers, and each general purpose register is 8 bit. So when we talk about the AVR which we are discussing, that is AVR 32, 80 mega 32, that is basically 8-bit microcontroller. And 8-bit microcontroller means it has a 8-bit data bus. So when the data bus is 8-bit, your registers, your data registers will be 8-bit, because the data move from memory, from one data memory to another data memory, from one register to another register through data bus. So size of the data bus is 8-bit. So mostly registers are 8-bit. There are few exceptions. There are few registers which are 16-bit, but they are basically two 8-bit registers combined to make a 16-bit register. Originally, all registers are 8 bits. Okay. So last time we discussed. Okay, let me tell you what is the function of ALU. ALU is very simple. ALU is arithmetic and logical unit. It performs arithmetic operations and it performs logical operations. And this is SREJ. This is a status register. I will discuss in the next slide. There's a program counter. Program counter is a register which basically tells the CPU what is the next instruction to execute. So program counter basically points to the next instruction which will be executed. And then when the instruction is fetched from the program memory, it will go into the instruction register, and after the instruction register it is decoded by the instruction register, means it is read by the instruction decoder, and then control signals are sent to the CPU as per the instruction. If instruction is a aid instruction, then aid control signals are sent. If instruction is a load instruction, store instruction, then according to the instruction, control signals are sent. Okay. So as we discussed in the AVR, basically AVR contains two kinds of memories. One memory is called program memory, other called data memory. In program memory, we put any program we write that goes into the program memory. And in data memory, any kind of data which is being transmitted between different components, that goes into the data memory.
Okay, so data memory is basically composed of three parts. First, data memory is general purpose register. As we discussed in the previous slide, these are the general purpose registers. And these registers are 32 registers again, and they are very close to the CPU because they are part of the AVR core. So they are very close to. They act almost same like cache memory. Like we have a cache memory in the CPU. So that almost works like a cache memory, and it is, we can say, it is part of the it is also, in some books, it is also called accumulator memory. So because they are very close to CPU, they are very close to ALU. That's why they are they are they they reduce the execution time. Another part of the data memory is SFR, special function registers. So you see, there are a lot of peripherals inside. There are a lot of peripherals inside the AVR. There are a lot of components in the AVR, and each component needs some registers. And those registers are special function registers. And there are some ports, and each port needs some register. So all these registers are part of a special function register. So we cannot use these special function registers for for the usual data transfer. They have a special purpose. So they can only be used for that purpose only. They cannot be used for the other purposes or general purposes. Third part is SRAM. SRAM is basically third part of the data memory, and it is used for, again, it is used for general purpose. But the difference between general purpose registers and SRAM is that general purpose registers are close to this ALU, and SRAM is not close to the ALU. So SRAM is basically a scratch pad. And what is a scratch pad? A scratch pad is basically, if you want to save uh, some data very temporarily, and you don't want to use it for long, so you put into SRAM, then you use it, and then you delete it. That kind of function, for that kind of function, you use SRAM. Okay. So these are again general purpose registers. So I was talking about there's the exception. There are general purpose registers, which are 32 general purpose registers, and which are 8-bit registers. But there is an exception. There are three registers, X, Y, and Z registers. They are basically 16-bit address registers. Okay. Why we need 16-bit registers? Any idea? Hello? To hold the more data, sir, more addresses. Hmm? मतलब ज्यादा डेटा जो टेम्पररी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं उसकी वजह से जो है हम मतलब 8 बिट से जो है कैस्केडिंग करके 16 बिट्स बनाते हैं. Mm-hmm. Just Anybody else? Anybody else? No idea, sir. So Gulam server is back, and Noman has left the meeting. Okay, basically, if you look at the if you look at the if you look at the memory, so basically the memory is, there are two kinds of memory. I told you there's a data memory and there is a program memory. And within the data memory, for example, let me show you. Okay, if you look at the data memory here, this data memory, if you look at the address of the memory, address is 00002 FFFF. So what are the number of bits required for addresses?
16 सर। Okay. Because the size of each address to access the data memory size of the address is 16 bits. That's why we need some, that's why any register we are using for the address, that must be a 16 bit. So if you look at the other registers, these X, Y, Z registers, they are 16-bit registers, and all other registers which are dealing with the addresses, they will be 16-bit registers. Okay. So if you talk about the program counter, so again program counter, a 16-bit register. If you talk about the other registers which are dealing with the addresses, they will be 16-bit, because the address is 16-bit. And what will be the size of address bus? सर देन हम जो है 8 बिट पहले जो है यूज क्यों करते थे? अगर हमारी एड्रेस 16 बिट की है तो 8 बिट में हम डेटा कैसे सेव कर सकते हैं? अच्छा, आप लेट मी क्लियर यू कि इसका क्या है। ठीक है, आप अज्यूम करें कि आपके पास ये डेटा मेमोरी है। ठीक है, अब आपकी जो इसमें फॉर एग्जांपल एफ 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 टाइम्स, ठीक है, स्टैक्स हैं। कितने स्टैक्स हैं? ओके एक जो स्टैक है, एक जो रो है वो आपकी 8 बिट की रो है। ठीक है, और टोटल रोज ओके कितनी है? वो एफ 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 टाइम्स है। ठीक है, एफ एफ इज हेक्साडेसिमल। ओके सर। तो क्योंकि आपकी जो फॉर एग्जांपल अज्यूम करें कि आपकी जो डेटा मेमोरी है वो सिर्फ आपकी डेटा मेमोरी 16 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको कितने बिट्स चाहिए? उनको हैंडल करने के लिए आपको सिर्फ 4 बिट्स चाहिए। ठीक है, मतलब ओके एड्रेस जनरेट करने, क्योंकि जब आपके टोटल रजिस्टर 16 है, 8 बिट 16 रजिस्टर है, तो आपके एड्रेसेस कितनी चाहिए? 0 to 15 एड्रेसेस चाहिए। और 0 to 15 एड्रेसेस जनरेट करने के लिए आपको 4 बिट चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मेमोरी हो जाती है फॉर एग्जांपल आपके पास 128 रजिस्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपको कितने चाहिए? आपको 7 बिट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 256 रजिस्टर्स आ जाते हैं, तो आपको मेमोरी चाहिए 8 बिट। अगर फॉर एग्जांपल 1024 बाइट्स की आपके पास मेमोरी है, ठीक है, 1024 बाइट्स की, तो आपके एड्रेसेस कितनी बन जाएंगी? 16। 3 बाइट सर। सर एक बिट में 8 बाइट मतलब हम रजिस्टर सेव कर सकते हैं ना, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 16 बिट्स हो जाएंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कितनी डेटा है? हमारे पास डेटा मेमोरी जो है वो 1024 बाइट्स हैं। ठीक है, बाइट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 बिट रजिस्टर को, क्योंकि बाइट 8 बिट की होती है और रजिस्टर भी हमारा 8 बिट है। ठीक है, ऐसे समझे कि हमारे पास 1024 रजिस्टर्स हैं, तो हमें एड्रेसेस के लिए कितने बिट्स चाहिए उन एड्रेसेस बनाने के लिए? 1 बिट चाहिए सर। 1 बिट चाहिए? जी सर, क्योंकि मैंने अभी आपको 1024 समझाया कि अगर आपके पास 16 बिट्स की एड्रेसेस हैं, सॉरी 16 बाइट्स की मेमोरी है। ठीक है, 16 बाइट्स की मेमोरी है, तो आपके पास 4 आपको बिट्स चाहिए एड्रेसिंग के लिए। अगर आपके पास 32 बाइट मेमोरी है, तो आपके पास 5 आपको बिट्स चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 64 बाइट मेमोरी है, तो आपको 6 बिट्स चाहिए। अगर आपके पास 128 बाइट मेमोरी है, तो आपको 7 चाहिए। अगर 256 है, तो आपको 8 चाहिए। अगर 512 बाइट मेमोरी हो जाती है, तो आपको कितने चाहिए? 9 चाहिए। और 1024 बाइट मेमोरी हो जाती है, तो कितनी एड्रेसेस चाहिए? 10 बिट्स चाहिए। 10 सर। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो
यहाँ पे जो आपके पास एड्रेस के बिट्स हैं वो टोटल कितने बिट्स हैं एड्रेसेस के? 16 है सर यहाँ पे। अच्छा, 16 में कितनी लोकेशंस आ सकती हैं? 16 में से 4 बिट्स आ सकती हैं सर। 16 में कितनी बाइट्स की मेमोरी हम एड्रेस कर सकते हैं? हम 2 पावर 16 की डेटा मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, 2 पावर 16 बाइट। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर, यस। जब 4 बिट में हम 16 बाइट्स की कर सकते हैं, और अगर 5 बिट में हम 32 बाइट्स कर सकते हैं, तो 16 बाइट्स में कितनी 2 पावर 16 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप खुद कैलकुलेट करें कि 2 पावर 16 बाइट्स कितने होंगे, ठीक है। 65536। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे। अब हमें पता है कि जो डेटा बस है, एवीआर की डेटा बस है, वो 8 बिट की है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसकी जो एड्रेस बस होगी वो कितने बिट की होगी? सर बिट की होगी या बाइट की होगी? अब बाइट में बता दें, बिट में बता दें, कैसे भी बता दें, कितने बिट्स सर होंगे 266 बस के? 266 से बाइट्स की होगी सर। अच्छा, यस सर, 256। नहीं, मुझे ये 66। बताएं, एड्रेस बस का क्या काम है? सर वो एड्रेसेस को लोकेशन करती है ना, तो मतलब जो भी एड्रेस हमारे पास होती है वो उसको सेव करता है। एड्रेस बस का काम होता है कि किसी भी लोकेशन से, मेमोरी लोकेशन से कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको डेटा फेच करनी है या स्टोर करनी है, रीड करनी है, राइट करनी है, तो पहले आपको वो एड्रेस देनी पड़ती है, ठीक है। सही बात है सर। तो हमारी जो एड्रेसेस हैं, वो हमारी जो एड्रेसेस बनती हैं वो 16 बिट बनती हैं। तो 16 बिट एड्रेस को कैरी करने के लिए हमें कितनी बस चाहिए, एड्रेस बस चाहिए? ओके, वेरी सिंपल सर क्वेश्चन। को ठीक है, अगर आपके पास 16 बिट डेटा है फॉर एग्जांपल, और 16 बिट डेटा को कैरी करने के लिए 16 बिट एड्रेस बस चाहिए हमें, ठीक है। और यस सर। हमारे पास जो रजिस्टर हैं वो 8 बिट के हैं, इसी वजह से हमारे पास जो डेटा बस है वो 8 बिट की है, ठीक है। जो जो खुद डेटा है वो 8 बिट्स की फॉर्म में या बाइट की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ठीक है, थ्रू डेटा बस, और उसकी सेविंग लोकेशन भी 8 बिट में होगी, ठीक है। मगर जो उसकी खुद एड्रेस बनेगी वो 16 बिट की बनेगी, ठीक है। सही है सर, मतलब जो रेस्ट ऑफ दी मतलब हमारे पास लोकेशंस होंगी वो मतलब खाली होंगी या फ्री होंगी, उसमें कोई डेटा सेव नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास 8 बिट सेव हो रहे हैं ना सर। हाँ, अब इसमें क्योंकि फॉर हमारे पास। एग्जांपल 16 बिट एड्रेसेस हैं, 16 बिट की लोकेशन बनती है 2 पावर 16। अब जरूरी नहीं है कि 2 पावर 16 जितनी हमारे पास मेमोरी हो सकता है 2 पावर 15 की मेमोरी हो सकता है 2 पावर 14 की है, क्योंकि मगर हमारा मसला ये है कि हम या तो 4 बिट की बना सकते हैं, या 8 बिट की बना सकते हैं, या 12 बिट की बना सकते हैं, या 16 की, उसके बीच में हम नंबर्स नहीं रख सकते, ठीक है। ओके। तो इसी वजह से हमारी जो मेमोरीज हैं टोटल, वो जो लोकेशंस हैं वो हमारी 16 बिट्स हैं, ठीक है सर। अब ये अब सिर्फ मेमोरी की लोकेशंस नहीं होती, ये लोकेशंस हमारे पेरिफेरल्स की भी लोकेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारी पेन्स हैं, एवीआर की जो पेन्स हैं, उनकी भी कोई ना कोई लोकेशन होती है, ठीक है। भाई इसकी ये लोकेशन है, उसके जो रजिस्टर्स की ये लोकेशन है, या बाहर कोई चीज़ कनेक्ट है उसकी लोकेशन। तो टोटल हमारे पास लोकेशन अवेलेबल है 2 पावर 16। तो उसमें हमने कहा है कि उसमें जो पहली जो लोकेशन है 32 लोकेशंस हैं, ठीक है, 0000 से लेकर 001F तक। पहली जो 32 लोकेशंस हैं वो हमने असाइन की हुई हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स को, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्स हैं, आईओ रजिस्टर्स, ठीक है, वो हमारे पास यूजुअली होते हैं 64 रजिस्टर्स, ठीक है। वो लोकेशन हमने असाइन की हुई है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, या जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आईओ रजिस्टर्स को, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी जो लोकेशन है वो एक्सटेंडेड आईओ मेमोरी को, ठीक है, और उसके बाद इंटरनल एस रैम को असाइन किए हुए। अगर हम एक्सटर्नल एस रैम कनेक्ट करते हैं तो उसके पास, उसके लिए भी हमारे पास लोकेशन मौजूद है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, हमारे पास जो डेटा मेमोरी है उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक जनरल पर्पस है, दूसरा स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, और तीसरा एस रैम, ठीक है। अगेन आईओ में 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड आईओ है, दूसरे एक्सटेंडेड आईओ है, ठीक है। और अगेन इंटरनल रैम में भी, सॉरी एस रैम में 2 पार्ट है आपके पास, एक इंटरनल एस रैम है और एक्सटर्नल एस रैम होती नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डेटा मेमोरी कम है तो आप एस रैम अलग से कनेक्ट कर सकते हैं, एस रैम की आईसी कनेक्ट कर सकते हैं अपने एवीआर के साथ। तो उसके लिए जब एड्रेसेस चाहिए होंगी तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है। सो ये कहते हैं कि भाई आईओ मेमोरी इज डेडिकेटेड टू स्पेशल फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस सच एज स्टेटस रजिस्टर, टाइमर, सीरियल कम्युनिकेशन। जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पेरिफेरल्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल रजिस्टर, उनके अपने कुछ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और आईओ मेमोरी के जितने भी रजिस्टर्स हैं वो उनके लिए होते हैं, ठीक है। और टोटल कितने रजिस्टर्स हैं? टोटल 64 रजिस्टर्स हैं। 64 रजिस्टर का मतलब है 64 बाइट की जो मेमोरी है वो हमने एलोकेट की हुई है आईओ मेमोरी को, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास मेमोरी 2 किस्म की होती है, एक होती है डेटा मेमोरी, दूसरी होती है प्रोग्राम मेमोरी। अब प्रोग्राम मेमोरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम फ्लैश यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? फ्लैश यूज करते हैं, फ्लैश। फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है। और डेटा के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। एक जो ऑप्शन है वो फास्ट ऑप्शन है, और दूसरा जब हमारा पहला ऑप्शन कंज्यूम हो जाए तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। पहले आप ऑप्शन को हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें जिसको हम कहते हैं सिंपली एस रैम कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है डबल ई रोम का, ठीक है। वो भी इसी के अंदर इंटीग्रेटेड होती है, चिप के अंदर ही इंटीग्रेट होती है, जिसको हम कहते हैं डबल ई रोम, और उसका फुल फॉर्म बनता है इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि एक तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि आपके पास मेमोरी इनफ नहीं है, स्पेशली डेटा मेमोरी की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम मेमोरी नहीं, डेटा मेमोरी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप डबल ई प्रोम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा फायदा ये है कि डबल ई प्रोम इज नॉट ए वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ऐसी कोई चीज है जो आप स्टोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जब पावर ऑफ हो एवीआर का तो ये मेमोरी हमारी, ये जो हमारी डेटा है, ये डेटा इरेज ना हो, तो आप वो डेटा डबल ई प्रोम में रख सकते हैं, ठीक है। जो एस रैम में डेटा रखेंगे वो जैसे ही पावर शट होगा, पावर टर्न ऑफ होगा, सारी उड़ जाएगी, ठीक है। मगर जो डबल ई प्रोम में रखेंगे वो वहीं पर रहेगी। जैसे कंप्यूटर में रोम काम करती है, रोम में हम क्या रखते हैं? बायोस रखते हैं ना, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कितने कितने मेमोरी कितनी है डेटा मेमोरी, और डेटा मेमोरी के पार्ट्स कैसे डिवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 80 मेगा 32 की, ठीक है। अब 80 मेगा 32 में ये कहते हैं कि भाई टोटल डेटा मेमोरी है 2144, ठीक है, तकरीबन तकरीबन वन किलो बाइट, ठीक है। 1 किलो बाइट होती है 1024, ठीक है।
1 किलोबाइट 1024 तो नहीं होती, 1000 बेसिकली बाइट्स होते हैं, ठीक है। और मगर यहाँ पे है 2144, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल ऑफ हो गई, ठीक है। तो ये ही टोटल नंबर ऑफ बाइट्स। इन टोटल नंबर ऑफ बाइट्स में से 64 हमने असाइन कर दी आईओ रजिस्टर्स को, 32 हमारी ये फिक्स्ड है जनरल पर्पस को। बाकी कितनी बचती है 2 KB, ठीक है। 2048 कितनी बचेगी 2 किलो बाइट्स, वो हमने असाइन कर दी एस रैम को, ठीक है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा मेमोरी। अच्छा, इसमें हमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एएलयू के करीब कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो उसके कोर का पार्ट है, ठीक है। जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि स्टेटस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये ऐसे रजिस्टर है जो एएलयू के कोर के पार्ट हैं, ठीक है। ये एएलयू के साथ यूज होते हैं, जब भी फेच, इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट साइकिल होगा, ये उसी में यूज है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्टेटस रजिस्टर क्या होता है। बेसिकली 8 बिट रजिस्टर है, और जो भी ऑपरेशन होता उसके अकॉर्डिंगली कोई भी ये फ्लैग, उसको फ्लैग जनरेट कर देगा। जो भी ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली फ्लैग जनरेट करेगा, ठीक है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था, ठीक है। आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये कहता है कि यहाँ पे लिखा है कि भाई ये आपका जो प्रोसेसर है ATmega32, ये आपका 8 बिट रिस्क मशीन है, ठीक है। लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि रिस्क मशीन किसको कहते हैं। उससे पहले आई थी सिस्क मशीन, ठीक है। उसके बाद आई थी रिस्क मशीन, और रिस्क मशीन इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि ये 32 किलो बाइट्स की इन सिस्टम सेल्फ प्रोग्रामेबल फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी है इसके पास, ठीक है। ये कौन सी मेमोरी है, ये प्रोग्राम मेमोरी है या डेटा मेमोरी है 32 किलो बाइट्स? प्रोग्राम मेमोरी सर। प्रोग्राम मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी लिखा हुआ है, फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। मगर यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है इन सिस्टम सेल्फ प्रोग्रामेबल। अब इन सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब सही इंटरनल है, एक हम एक्सटर्नल भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इससे पहले जो प्रोग्राम आपके आपके कंट्रोलर्स में आप प्रोग्राम फॉर एग्जांपल प्रोग्राम करते थे, जो भी डिज़ाइन लिखते थे, वो जो प्रोग्राम करते थे, वो आपको क्या चाहिए था, उसके लिए आपको एक बर्नर चाहिए होता था, ठीक है। फिर आप आईसी निकाल के सर्किट से उस बर्नर में रखते थे, फिर वो बर्नर से आप उसको वो डिज़ाइन देते थे, वो फाइल देते थे, फिर वो उसमें जाके फ्लैश में जाके प्रोग्राम हो जाती थी, ठीक है। अब इसका मकसद ये है कि ये आईसी जिस सिस्टम में लगी हुई है वहां से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसकी कनेक्टिविटी आप कंप्यूटर से करें, और थ्रू कंपाइलर, थ्रू प्रोग्रामर जो आपका आईडी होगा वहीं से आप उसको भेज दें, निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। दैट इज इन सिस्टम सेल्फ प्रोग्रामेबल। अच्छा, इसमें आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा होगा 2 KB की एस रैम है। अभी हमने देखा कि भाई हमारे पास 2048 हमारी जो बाइट्स हैं वो एस रैम की होती हैं, और हमारी 32 जो बाइट्स होती हैं वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स की होती हैं, और 64 बाइट्स हमारी किसकी होती हैं? 32 बाइट्स, 32 बाइट्स जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और 64 बाइट्स ये देख लें आईओ रजिस्टर्स पे, ठीक है। आईओ रजिस्टर्स की, ठीक है। आईओ रजिस्टर 64, जनरल पर्पस 32 बाइट्स, और एसरैम का पार्ट कितना है 2048, ठीक है। और इसमें बाकी इसके फीचर लिखे हुए, हम चैप्टर टू चैप्टर जाएंगे, और हर एक फीचर पे एक चैप्टर है, टाइमर के चैप्टर्स हैं, काउंटर के, इंटरप्ट के, सब के चैप्टर हैं, हम वहां जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये चीजें हम डिस्कस
ये भी कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इसमें आइडल, एडीसी नॉइज रिडक्शन, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऑपरेटिंग वोल्टेजेस देख लें, इसमें दो सीरीजें आती हैं, एक हायर वोल्टेजेस पे काम करता है, एक लोअर वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है, दोनों सीरीज अवेलेबल है। स्पीड ग्रेड भी दो अवेलेबल हैं, एक 8 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम क्लॉक पे काम करेगा, दूसरी 16 मेगाहर्ट्ज पे कलाम पे काम करेगा। और पावर ग्रेडिंग भी देख लें, ठीक है, कि पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। एक्टिव मोड में 1.1 मिली एम्पियर, आइडल मोड में 0.35 मिली एम्पियर और पावर डाउन मोड में लेस देन 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। when 3 volt is applied and external temperature, sorry, IC temperature is 25 centigrade. तो voltages, speed, temperature, temperature grade और power consumption are very key parameters। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर कितना करंट कंज्यूम करेगा, कितने सेंटीग्रेड पे और कितने वोल्टेज पे। फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.1 तो कितने वाट कंज्यूम करेगा ये। अगर मैं आपसे और पूछूं सर 30 मेगा 32 एल जो है वो उसकी पावर रेटिंग कितनी है, पावर कितना कंज्यूम करेगा। सर सर वोल्टेज और करंट गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें कितना, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है। 3.3 सर। 3.3 वाट। यस 3.3 पावर जो है इसकी रेटिंग होगी वाट हो जाएगी। 3.3 का मतलब यूनिट मिली 3.3। मिली वाट सर। हाँ सर ये करंट जो है वो हमारा मिली एम्पियर में है ना, तो हमारा का जो रेटिंग होगी उसकी वो भी कम ही होगी, मिली वाट में होगी। ठीक है, तो इसकी पावर कंजम्पशन है 3.3 मिली वाट, ठीक है। यस सर। और ये आइडल मोड में जाएगा तो करंट पावर कंजम्पशन इसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड पावर कंजम्पशन अगेन डिपेंड्स अपॉन दी अदर फैक्टर्स, किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं या टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अच्छा, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये एक इसका सीपीयू होता है और सीपीयू के बाद इसके पेरिफेरल्स होते हैं, ठीक है। अब एवीआर का सीपीयू का पार्ट क्या है, ये एवीआर का सीपीयू का पार्ट है जिसमें ये 32 पे जनरल पर्पस रजिस्टर आ जाते हैं, एएलयू आ जाती है, एसरैम आ जाती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है और ये प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है। और ये मैंने कहा था कि भाई ये जो डेटा मेमोरी है, दिस इज आल्सो डेटा मेमोरी बट दिस इज अवे फ्रॉम द एएलयू, सो इट इज नॉट द फास्टेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। और ये फ्लैश मेमोरी है, ये प्रोग्राम मेमोरी है। प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से उठानी है, वो फ्लैश मेमोरी से फैच होकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगी और फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाएगी और वहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे, ठीक है। और आपके एएलयू है, आईएलयू आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डेटा बस के साथ, ठीक है। और आपके 32 जनरल पर्पस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो दिस 32 जनरल पर्पस रजिस्टर आर वर्किंग एज ए accumulator और वर्किंग एज ए कैशे मेमोरी, ठीक है। इसमें वो रजिस्टर इसमें मेंशन नहीं किया गया, स्टेटस रजिस्टर मेंशन नहीं किया गया, बट दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सीपीयू को, ठीक है। और बाकी जो पेरिफेरल्स हैं ये हम चैप्टर टू चैप्टर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या पेरिफेरल्स हैं, ठीक। और हर एक का अपना चैप्टर है, ओके। जब मेरे ख्याल में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इस यहाँ पे मेंशन है स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। ये इसकी डेटा बस है, डेटा बस इज 8 बिट, ओके, सो यू कैन फॉलो दैट। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द डेटा बस, क्योंकि हम जो भी एक पार्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर से दूसरे पार्ट ऑफ डेटा आप एक्सचेंज करेंगे तो वो डेटा एक्सचेंज थ्रू हाईवे जाएगी, डेटा हाईवे। और डेटा हाईवे क्या होता है, वो डेटा बस होती है, ठीक है। और डेटा कहाँ से उठानी है, कहाँ से रीड करनी है, कहाँ पे राइट करनी है, तो वो कौन बताएगा, वो एड्रेस बताएगी, ठीक है। वो एड्रेस कहाँ से आएगी, वो एड्रेस थ्रू एड्रेस बस आएगी, ठीक है। और वो एड्रेसेस आती हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर से एड्रेसेस आती हैं, ठीक है।
So again same thing, this is SRAM, this is EEPROM, these are I lines, this is ALU, and this is general purpose program counter, flash program memory. So these are similar parts again. We have discussed कि आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर आते हैं वो सिर्फ 80 मेगा 32 नहीं आता, विद इन 80 मेगा 32 आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं. ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग आते हैं, इन टर्म्स ऑफ आपकी सेंटीग्रेड ग्रेडिंग के आते हैं, स्पीड ग्रेड के आते हैं मुख्तलिफ. फॉर एग्जांपल आप कमर्शियल यूज़ करते हैं या इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रियल में होता है कि आप -40 सेंटीग्रेड टू +85 सेंटीग्रेड तक यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो अच्छा, पैकेजिंग पे डिस्कस करते हैं. पैकेजिंग अगेन, पैकेजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पैकेजिंग आप डील कर सकते हैं. ठीक है, जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज डिप पैकेजिंग, दिस इज माइक्रो लीड फ्रेम पैकेजिंग है, ये TQFP पैकेजिंग है. ठीक है. सो कुछ पैकेजिंग ऐसी होती हैं जो मैनुअली सोल्डरिंग नहीं हो सकती. ठीक है, उनके लिए स्पेशलाइज्ड मशीन्स चाहिए होती हैं, प्लेसिंग और राउटिंग की मशीन्स चाहिए होती हैं, वो करती है. फॉर एग्जांपल ये है, ये मैनुअली नहीं हो सकती TQFP. ठीक है, या फॉर एग्जांपल ये है, नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल डिप है, डिप की आप मैनुअली शायद कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल PLCC है, इसका एक होल्डर होता है, उस होल्डर में आप रखते हैं, जैसे जिप सॉकेट होता है उसमें रखते हैं, और उसके बाद आप इसको आप सोल्डर कर देते हैं. ठीक है. So these are different packages, and packages are also very very important to remember. ठीक है, कि किस पैकेज में ICR आ रही है और उसका प्रोफाइल है. ठीक है. So that's it. This is as the review of the chapter number 2. ठीक है. अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई हमारा जो AVR है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, उसमें AVR कोर होता है और AVR के पेरिफेरल्स होते हैं, और AVR के कोर के अंदर डेटा मेमोरी होती है, प्रोग्राम मेमोरी होती है. कितनी डेटा मेमोरी होती है, कितनी प्रोग्राम मेमोरी होती है, वो भी हमने डिस्कस कर ली. और हम एड्रेस बसेस भी होती हैं, डेटा बसेस, वो क्या करती हैं, उनकी क्या साइज है, वो भी हमने डिस्कस कर ली. ठीक है. सो लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 7. ठीक है. ठीक है. चैप्टर 7 स्लाइड्स आर विजिबल. Yes, sir. Yes, sir, visible. Okay. So the participants are Noman is back. Good, Noman. Thank you for coming. So अच्छा, अब ये एक बेसिक चीज़ है कि भाई जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. ठीक है. यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कई ऑप्शंस हैं. ठीक है. अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास असेंबली में भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप C में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. ठीक है. और तीसरा ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है आर्डिनो. ठीक है. थ्रू आर्डिनो भी आप AVR की प्रोग्रामिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आर्डिनो उनो यूज़ करते हैं आप, या कोई भी आर्डिनो आप यूज़ करते हैं, उसमें आप प्रोग्रामिंग जो करते हैं थ्रू आर्डिनो ID यूज़ करते हैं. ठीक है. दैट इज़ रिलेटिवली सिंपल प्रोग्रामिंग एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग डायरेक्टली इन द C. एंड अगर आप और कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं तो आप असेंबली में चले जाएं. तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ. ठीक है. ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों में एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. ठीक है. सो एडवांटेज ये है कि जितना आप नीचे जाएंगे, ठीक है, असेंबली की तरफ जाएंगे, सो इट इज यू हैव मोर एक्सेस टू द हार्डवेयर, आप यू हैव मोर एक्सेस टू द मेमोरीज, आप एफिशिएंट कोडिंग कर सकते हैं. और नुकसान ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है आपकी. सो C में भी यही है कि C भी अगर आप C में लिखते हैं तो एज कम्पेयर टू आर्डिनो इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, और मगर आपकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है एज कम्पेयर टू आर्डिनो. जो फाइल आप आर्डिनो में बनाएंगे वही फाइल अगर आप डायरेक्टली C में बनाएंगे तो उसकी साइज़ कम होगी. ठीक है. तो आपकी साइज़ अगर कम होगी तो उसी फॉर एग्जाम्पल जितनी आपके पास प्रोग्राम मेमोरी अवेलेबल है उसी मेमोरी में आपकी फाइल आ जाएगी. हो सकता है वही फाइल आप आर्डिनो में बनाएं तो वो आर्डिनो का जो कंपाइलर होगा वो उसकी फाइल की साइज ज़्यादा जनरेट कर देगा. ठीक है. सो अगेन देयर इज अ ट्रेड ऑफ. डिपेंड करता है सिचुएशन. अगर आप प्रोटोटाइपिंग करना चाहते हैं तो आर्डिनो इज द बेस्ट ऑप्शन, आर्डिनो ID. ठीक है. हार्डवेयर आप सेम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है.
सो ऐसा नहीं है कि आपका हार्डवेयर चेंज हो रहा है, सेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रोटोटाइपिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप आर्डिनो में काम करते हैं। अगर आप एंड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली सी में काम करते हैं। अच्छा, बिल्कुल किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल एफिशिएंट करना चाहते हैं कि उसके बाद मतलब कोई ऑप्शन ना रहे एफिशिएंट करने का, तो फिर आप असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये तीनों ऑप्शंस? यस सर। ओके, तो ये स्लाइड अगेन बता रही है कि भाई वाई प्रोग्रामिंग सी, तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अच्छा अच्छा, डी सी लैंग्वेज यूज करते हैं तो सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स कौन से हैं? उसके डेटा टाइप्स हैं अनसाइंड कैरेक्टर, कैरेक्टर, अनसाइंड इंटीजर, इंटीजर अनसाइंड, लॉन्ग, लॉन्ग एंड फ्लोट एंड डबल। इस चीज में, अब इस चीज में ये ख्याल रखना है कि भाई हमारे पास जो मेमोरी है वो बेसिकली, या हमारे पास जो डेटा बेस है वो 8 बिट की है, जो हमारे पास रजिस्टर्स है वो भी सारे 8 बिट के हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि हम जो डेटा टाइप यूज करें उसमें हम 8 बिट का डेटा टाइप अगर काम करता है तो 8 बिट का डेटा टाइप यूज करें। ऐसे नहीं कि फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर स्टोर करना है और नंबर की वैल्यू है 55 और उसके लिए आप इंटीजर डेटा टाइप ले लें, तो इंटीजर डेटा टाइप इज ए 16 बिट डेटा टाइप, तो दैट विल बी ए वेस्टेज ऑफ मेमोरी, बोथ प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, ठीक है। सो डेटा टाइप्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि अनसाइन कैरेक्टर और इंटीजर में क्या फर्क है और दोनों की रेंज कितनी है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप सिंपल कैरेक्टर लिखेंगे तो वो साइंड में चला जाएगा, और साइंड का क्या मकसद है, उसकी रेंज चेंज हो जाएगी, उसमें बोथ साइंड और अनसाइंड दोनों आ जाएंगे, और उसकी रेंज हो जाएगी -128 से लेकर +120 +127, ठीक है। अब अगर आपका आपका नंबर है 128 +128, तो ये इसमें सिंपल कैरेक्टर में आप इसको से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, if your number is positive so do not use साइन कैरेक्टर, ठीक है। उसके लिए आप अनसाइन कैरेक्टर यूज करें, 0 टू, जिसकी रेंज है 0 टू 255, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि वेयर टू यूज विच डेटा टाइप। ओके सर। यस सर। और हम ये डिस्कस नहीं करते, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्लोट में और इंटीजर में क्या फर्क है, ठीक है। आपने सुना कि सर फ्लोट, हाँ, सर फ्लोट में तो हम डेसिमल पॉइंट्स को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि सर इंटीजर हमें मतलब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं बताता, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है। और फ्लोट में हमारे पास जो भी मतलब जो हम अ, वो करते हैं P/Q वाले वैल्यू जो भी आते हैं डेसिमल में, तो वो हाँ, उसको शो करता है। ठीक है, ठीक है, गुड गुड, आगे चलें, ठीक है। अब ये इसका पहला एग्जांपल है, इसका पहला एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो एग्जांपल है, इस पहले एग्जांपल से करने से पहले हम थोड़ा इसका डायग्राम देख लें, ठीक है। 80 मेगा 32 का, अब 80 मेगा 32 इज ए 40 पिन माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। 40 पिन में से 32 जो पिन हैं वो आईओ पिन हैं, ठीक है, मगर मल्टीपर्पज पिन हैं, डेडिकेटेड पिन नहीं है, मल्टीपर्पज पिन है, मतलब इसको आप जनरल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी स्पेशल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पी ए की, ठीक है, जो पोर्ट ए है उसकी अगर मैं बात करूं तो पोर्ट ए में फॉर एग्जांपल आपकी 8 पिन हैं, ठीक है। पोर्ट बी में आपकी 0 to 7 8 पिन हैं, पोर्ट सी में आपकी 8 पिन हैं, और पोर्ट डी में भी 8 पिन हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि पोर्ट ए के सामने ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा होगा, ठीक है। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद है कि इसका एक स्पेशल पर्पस भी है इस पिन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कन्वर्टर। हाँ, अगर आप इस पिन को आप एज ए एडीसी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो
अली इकबाल रजा, अली इकबाल रजा, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, तो जितनी भी हमारी आईओ पिन्स हैं, आईओ पिन्स को याद रखने का तरीका ये है कि जो भी पी ए, पी बी, पी सी और पी डी की जो पिन्स हैं वो सारी आईओ पिन्स हैं, ठीक है। और उसके आगे जो उसके फंक्शन लिखे हुए हैं वो इसके स्पेशल फंक्शंस हैं, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल पेरिफेरल्स यूज करेंगे, पेरिफेरल्स में एडीसी आ जाती है, पेरिफेरल्स में टाइमर्स आ जाते हैं, पेरिफेरल में एसपीआई आ जाता है, यूआरट आ जाता है, वो इन पिन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसके स्पेशल पर्पज में आने। बाकी कितनी पिन बचती हैं? 40 माइनस 32, बाकी पिन बचती हैं 8 पिन, 8। ठीक है। 8 पिन में से आप देखेंगे आपके 2 वीसीसी हैं और 2 ग्राउंड हैं, ठीक है। तो 4 पिन ये माइनस हो गई, बाकी 4 पिन में से 2 आपकी क्लॉक की पिन हैं और एक आपकी रीसेट की पिन है और एक आपकी पिन जो है वो 32 नंबर पिन है, वो AREF पिन है, ठीक है। AREF क्या है? वो बेसिकली एडीसी का रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है। सो आगे चल के हम इनको इंडिविजुअली यूज करेंगे तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ पे ये याद रखेंगे 40 पिन में 32 आईओ पिन हैं और बाकी जो पिन हैं वो स्पेशल पर्पज पिन से, उनको एज ए आईओ हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ग्राउंड को हम एज ए आईओ यूज नहीं कर सकते, वीसीसी को एज ए आईओ यूज नहीं कर सकते, रीसेट को हम एज ए आईओ यूज नहीं कर सकते। सो सिर्फ आईओ के लिए हमारे पास सिर्फ 32 पिन हैं, ठीक है। और आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे वाई देयर आर 2 वीसीसी एंड वाई देयर आर 2 ग्राउंड, ठीक है। तो दूसरा जो वीसीसी है वो एडीसी का वीसीसी है और जो दूसरा ग्राउंड है वो एडीसी का ग्राउंड है, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पोर्ट ए का वीसीसी और पोर्ट ए का ग्राउंड है और पोर्ट ए का रेफरेंस है, ठीक है। ओके। अच्छा, लास्ट में हमने स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास जो इतनी डेटा मेमोरी है उस डेटा मेमोरी में हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर है जो ए यूज करता है जो 32 है। उसके बाद हमारे पास आईओ मेमोरी रजिस्टर या जिसको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कह रहे थे, ठीक है, वो कितने हैं? वो 64 है, ठीक है। उस 64 में से फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि भाई पेरिफेरल्स यूज करते हैं, आपकी पिन्स यूज करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन रजिस्टर्स में से 3 रजिस्टर्स का जिक्र करेंगे। उनमें से एक रजिस्टर है फॉर एग्जांपल डीडीआर रजिस्टर, ठीक है, और दूसरा रजिस्टर है पोर्ट रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर है पिन रजिस्टर, ठीक है। ये 3 रजिस्टर हैं, तीनों 8 बिट रजिस्टर हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ आईओ मेमोरी रजिस्टर और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है। अब इसको जब तक इसको डिस्कस करेंगे फिर हम जाके सी फाइल पे जाते हैं कि भाई सी फाइल कैसे काम करेगी, ठीक है। अच्छा, अब कितने रजिस्टर हैं? एक रजिस्टर है पोर्ट रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर है पिन रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर है डीडीआर रजिस्टर, ठीक है। अब इस स्लाइड को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट DDR register is basically responsible for configuring the direction of the pin, ठीक है। हमें बताया कि ये जो पिन होती है ये एज ए इनपुट भी यूज हो सकती है, एज ए आउटपुट भी यूज हो सकती है, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करें कि भाई ये इनपुट है या आउटपुट है, ठीक है। उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए we need DDR register, ठीक है। So DDR basically configures whether you want to use as a input pin or as a output pin, ठीक है। और जब फॉर एग्जांपल एज ए आउटपुट पिन यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं? तो आप कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। किसी पिन को फॉर एग्जांपल आउटपुट पिन यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप डेटा सेंड करते हैं। तो वो डेटा जब आप सेंड करेंगे तो कहाँ पे रखेंगे? तो वो आप पोर्ट रजिस्टर में रखेंगे,
ठीक है, जो भी डेटा आप पोर्ट रजिस्टर में रखेंगे और इसका डायरेक्शन आउटपुट की तरफ कर देंगे तो वो जो भी डेटा पोर्ट में पड़ी होगी वो डेटा बाहर चली जाएगी, वो पिन पे आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको एज ए इनपुट यूज करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप इनपुट यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप पिन से रीड करते हैं डेटा। ठीक है, पिन से डेटा इन करते हैं और जब फॉर एग्जाम्पल आप पिन से डेटा इन कराते हैं तो आपको कोई रजिस्टर चाहिए जिसमें आप वो डेटा सेव कर सकें। ठीक है, उस रजिस्टर को हम कहते हैं पिन रजिस्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात। पोर्ट रजिस्टर आउटपुट के लिए यूज होता है, पिन रजिस्टर इनपुट के लिए यूज होता है और डीडीआर रजिस्टर यूज होता है डायरेक्शन के लिए। ओके सर। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि भाई ये जो डीडीआर रजिस्टर है, इस डीडीआर रजिस्टर के लिए आप सामने लिखा हुआ है एक्स, डीडीआर एक्स। अब एक्स का क्या मतलब है? एक्स का मतलब है कि हमारे पास 4 किस्म के आईओ पोर्ट्स हैं। ठीक है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तीसरा डी है। ठीक है, अगर हम ए की बात करें तो ये हो जाएगा डीडीआर ए, अगर बी की बात करें तो ये हो जाएगा डीडीआर बी। सेम इज द केस है, अगर हम बी की बात कर रहे हैं आउटपुट पोर्ट रजिस्टर की तो पोर्ट बी हो जाएगा, पोर्ट सी डी, पोर्ट ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स ए बी सी डी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मगर इसके आगे डॉट और एन लिखा हुआ है। ठीक है, अब डॉट और एन का क्या मकसद है, कोई बताएगा? सर पिन नंबर जो हम यूज करेंगे। पिन नंबर एग्जैक्टली, क्योंकि जो पोर्ट है वो हमारा 8 बिट का है, वो उसकी जो पिन है वो 0 to 7 है। अब आप फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि आप सारे पोर्ट को डील ना करें, आप सिर्फ किसी एक पिन को डील करना चाहते हैं, उसमें से डेटा लेना चाहते हैं या उसको डेटा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो पिन नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो वो सिर्फ वो पिन आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको यूज करेंगे एज ए इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो PD4 है इसको आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एज ए आउटपुट पोर्ट। ठीक है, जब आप इसको एज ए आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे तो DDR को आप क्या देंगे? DDR को 1 देंगे या 0 देंगे? सर 1 देना चाहिए ना। हाँ, ठीक है, 1 इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये जो सर्किट लगा हुआ है ये आपको लग रहा होगा कि इसका थोड़ा सा चेहरा इन्वर्टर से मिलता है। ठीक है, मगर ये इन्वर्टर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये ट्राई स्टेट बफर है। ठीक है, एक तो इसके आगे बबल नहीं है, अगर बबल होता तो फिर हम कहते कि भाई ये इन्वर्टर है। ये बेसिकली ट्राई स्टेट बफर है। ठीक है, ट्राई स्टेट बफर का क्या मकसद है? ये एज ए स्विच काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको जब इस पे थर्ड इसके 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 3 पोर्ट्स होते हैं, एक इनपुट आउटपुट दूसरा स्विच, तीसरा स्विच। और जब आप स्विच पे आप जब 1 भेजते हैं तो ये क्या करेगा? ये एज ए आउटपुट पोर्ट काम करेगा, मतलब ये क्लोज सर्किट हो जाएगा और जो पोर्ट की इंफॉर्मेशन होगी वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, और जब आप इसको 0 देंगे ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब जो पोर्ट की इंफॉर्मेशन होगी वो बाहर में जा पाएगी और जो डेटा बाहर से होगी वो डायरेक्टली पिन में चली जाएगी। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। सर तो यहाँ पे कौन सी पोर्ट देंगे मतलब PD4 के लिए? सॉरी, सर यहाँ पे जो अगर आपने जो बात की कि आउटपुट अगर यूज कर रहे हैं PD4 तो उसके लिए हम कौन सी पेन यूज करेंगे यहाँ पे, PC1 या PC0? नहीं, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड PD4 से है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम PD4 को करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? DDR-D, ठीक है, DDR-D डॉट 4। ठीक है, डॉट 4 इज इक्वल टू 1। अगर हम इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो एज आउटपुट पोर्ट यूज होगा, अगर इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो एज इनपुट यूज होगा। ओके सर। ठीक है, अब आते हैं वापस इस पे।
ठीक है, ये चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये कोड डिस्कस कर लें। ठीक है, अब ये आपका हेलो वर्ल्ड कोड है। ठीक है, जो सी का पहला पहला कोड है जो आप फॉर एग्जांपल यूज करेंगे। ठीक है, तो जब आप सी में कोड लिखते हैं तो पहले पहले आपको क्या करना है, पहले पहले आपको फाइल इंक्लूड करानी है। जो AVR हेडर है वो आपने, स्टैंडर्ड हेडर होता है उसका, वो आपने इंक्लूड कराना है, और उसका है AVR/IO.h। ठीक है, उसके बाद आप मेन फाइल लिखते हैं, इंटीजर नेम वाइड। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप करना क्या चाहते हैं, आप करना ये चाहते हैं कि आप कोई पोर्ट उठा रहे हैं, पोर्ट बी, और उस पर 0 to 255 नंबर सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं पहले मैं 0 सेंड करूं फिर 1 सेंड करूं, मतलब एक किसी का काउंटर बनाना चाहते हैं, और वो काउंटर आप किस, कहाँ पे, वो काउंटर की वैल्यूज कहाँ पे भेजना चाहते हैं, वो पोर्ट बी पे भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप, जब आप काउंटर बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप काउंटर कितना बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 00 से लेकर FF तक। ठीक है, अब 00 से FF का मतलब है 00 to 255। ठीक है, जब आपका काउंटर 0 से जाके 255 तक जाएगा तो आपके लिए सुटेबल डेटा टाइप कौन सा है? सर करेक्ट अनसाइंड अनसाइंड। करेक्टर। अनसाइन कैरेक्टर। ठीक है, हम सिंपल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल जो कैरेक्टर होता है वो साइन कैरेक्टर होता है, और उसकी जो वैल्यूज होती है वो -128 से लेकर +127 तक होती है। ठीक है, तो वो ये वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा, इसी वजह से हमने अनसाइन कैरेक्टर यूज किया। हमने इंटीजर क्यों नहीं यूज किया? सर इंटीजर की वैल्यू भी, क्योंकि सर वो साइंड होती है ना, तो वो माइनस में वैल्यू देता है, माइनस से नहीं लेकर नहीं नहीं, मतलब। सर क्योंकि वो 16 बिट का होता है इस वजह से। हाँ, क्योंकि वो 16 बिट है, और हमारा काम अगर 8 बिट में हो जाता है तो हम 16 बिट क्यों यूज करें, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम मेमोरी है वो लिमिटेड है। हम नहीं चाहते कि हमारी प्रोग्राम मेमोरी ज़ाया हो, इसी वजह से हमें एफिशिएंटली डाटा टाइप्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद डेफिनेटली हम वैल्यू सेंड करना चाहते हैं, तो जो पोर्ट यूज होगा वो एज ए आउटपुट यूज हो रहा है। डेफिनेटली हम रीड नहीं कर रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं पोर्ट पे। ठीक है, सो in order to configure the port B, we have to assign all these values to 1 1। ठीक है, हम सबको, सारे कोड को 1 1 कर देंगे। ठीक है, एफ एफ का क्या मतलब होता है? एफ एफ का मतलब है, एफ एफ इज हेक्साडेसिमल नंबर। एक एफ का मतलब है चार, 4 1, और दूसरे एफ का मतलब है दूसरे 4 1। तो टोटल कितने वन हो गए? 8 1 हो गए। तो बी पोर्ट में कितनी पिंस होती हैं? 8 पिंस होती है ना, तो हर एक पिन को 1 असाइन हो गया, और जब हर एक पिन को 1 असाइन हो गया तो सारा पोर्ट आपका आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम DDR को 1 देंगे तो आउटपुट पोर्ट बन जाएगा, अगर उसको 0 देंगे तो वो इनपुट पोर्ट बन जाएगा। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे लूप क्रिएट किया। ठीक है, 0 से लेकर 255 तक, और ये इंक्रीमेंट किए, तो जो भी लूप की, जो भी सॉरी काउंटर की वैल्यू है वो हमने असाइन कर दिए पोर्ट बी को। ठीक है, और हमने रिटर्न 0 कर दिया है, क्योंकि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। ठीक है, अब प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इस प्रोग्राम को हम सिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ इसकी। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। Okay, so I'm going to close this, and I'm going to open.
ओके, सो शुरू से प्रोग्राम बनाते हैं इसका। Okay, so let me know you can see this screen. ठीक है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है HTML स्टूडियो की? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम फॉर एग्जांपल आप ये करें कि ये जो HTML स्टूडियो है, इस HTML स्टूडियो 7 इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, HTML की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये अपने अपने पीसीज पे आप इंस्टॉल कर लें, और जितनी भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे करेंगे। इसमें बेसिकली सिमुलेटर भी है, तो सारी जो प्रैक्टिस करेंगे हम सिमुलेटर पे करेंगे। सो my advice is to, before the next class, you must install this software on your PC, on your laptop। ठीक है, अच्छा, जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, आपको कहता है कि भाई ASF बोर्ड प्रोजेक्ट है, एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी है, एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट है, आर्डिनो है। ठीक है, अब आपके पास आप कहाँ से प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल बनाना चाहते हैं? आप सी से बनाना चाहते हैं, आप C++ यूज़ करना चाहते हैं, आप कोई और सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बोर्ड है, आप उस बोर्ड से शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, बट वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम आर्डिनो इसके। ठीक है, हमारे पास जो कोड लिखेंगे वो आर्डिनो का कोड नहीं होगा, हम सिंपल सी का कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे पिक करेंगे GCC C एग्जीक्यूटिबल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कोई नाम देना चाहें, आप लिखें भाई हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे भाई लोकेशन में यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ और दूसरी लोकेशन पे ये सेव हो जाए, तो आप किसी और लोकेशन पे भी ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेसिकली जिस हार्डवेयर पे आप काम करना चाहते हैं उस हार्डवेयर को हम काम करना चाहते हैं 80 मेगा 32 पे। ठीक है, 80 मेगा 32। ठीक है, अब ये जो बेसिक पार्ट है ये ऑटोमेटिकली आपके पास मौजूद होगा। आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ बॉडी ऑफ द टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप कोड लिखे, फॉर एग्जांपल पहले आप क्या करते हैं, आप इनिशियलाइज करते हैं अनसाइंड कैरेक्टर Z। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे DDR, कौन सा पोर्ट यूज कर रहे हैं हम? बी सर। B। ठीक है, DDR B। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेक्सा में देना चाहते हैं ऑल वंस, तो हम लिखेंगे 0xFF। ठीक है, ये हमने क्यों किया, हमने कॉन्फ़िगर किया पोर्ट को एज ए आउटपुट पोर्ट। ठीक है, एज आउटपुट पोर्ट। ठीक है, ये हमारा काउंटर वेरिएबल है जिससे काउंटर जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हमें वाइल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम फॉर यूज करते हैं। ठीक है, फॉर z इज इक्वल टू 0। ठीक है, z लेस देन इक्वल टू 255 एंड z प्लस प्लस। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ से होगी वो आप किसको असाइन करना चाहते हैं, पोर्ट बी को। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर आप वैल्यू भेजना चाहते हैं तो आप पोर्ट यूज करेंगे, रजिस्टर यूज करेंगे। अगर आप वैल्यू रिसीव करना चाहते हैं उस पिन से तो आप पिन यूज करेंगे, पिन बी। ठीक है,
सो पोर्ट बी इज इक्वल टू, पोर्ट बी को क्या Z देना से। चाहते हैं, जेड की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो आप लिखते हैं भाई देयर इज नो रिटर्न। ठीक है, अब इसको फॉर एग्जांपल आप कंपाइल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कंपाइल करें। ठीक है, मगर हम फॉर एग्जांपल आप कंपाइल करना चाहते हैं तो आप क्या जाएंगे, बिल्ड में जाएंगे और बिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कंपाइल हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपने कितने बाइट्स यूज किए, आपके प्रोग्राम ने 124 बाइट्स यूज किए। ठीक है, जितनी आपकी प्रोग्राम मेमोरी है उसके इतने बाइट्स आपने यूज कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई आपकी डेटा मेमोरी अभी तक 0% यूज हुई है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपकी जो एस रैम वाला पार्ट है वो यूज नहीं हुआ। ठीक है, आपके सिर्फ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर और जनरल पर्पज रजिस्टर यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यस सर। आपको देखा कि प्रोग्राम मेमोरी आपकी 124 बाइट्स हुई। ठीक है, हमारे पास टोटल प्रोग्राम मेमोरी कितनी है, हम्म? 8 बिट है, कितनी है, 8 की है ना सर, 8 बिट की सर प्रोग्राम मेमोरी। 8 बिट की प्रोग्राम मेमोरी। हमने एक ये प्रोग्राम डेटा लिखा है वो है 124 बाइट्स का, और इसमें लिखा हुआ है कि आपकी प्रोग्राम मेमोरी अभी 0.4% फुल हुई है। तो 8 बिट की कैसे हो गई, वो तो आप कोई और बात कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम मेमोरी पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी कोड मेमोरी कितनी है या प्रोग्राम मेमोरी कितनी है टोटल 80 मेगा 32 में। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपका जो 80 मेगा सर 2 के किलो थी बाद ना। नंबर आता है वो आपकी प्रोग्राम मेमोरी होती है। ठीक है, 80 मेगा के बाद जो नंबर है 80 मेगा 32, that 32 30 is a program memory, so total program memory is 32 kilobytes। ठीक है, किलो। ओके सर। और डेटा मेमोरी क्यों यूज नहीं हुई, क्योंकि इसमें हमने डेटा मेमोरी अभी तक जो यूज की है वो हमने सिर्फ जनरल पर्पज रजिस्टर और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज किए, और अभी हमने एस रैम यूज नहीं की, दैट्स वाई 0% यूज हुई है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमें हार्डवेयर होता तो हम क्या करते, इसको कंपाइल करके इसकी हेक्स फाइल जो है हम उसको प्रोग्राम करते। ठीक है, अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी हम इसको सिमुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिमुलेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है स्टार्ट डीबगिंग एंड ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आके सिमुलेटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सेव कर देना है। सेव करके वापस आप मेन फाइल पे आ जाएं। ठीक है, और जब आप मेन फाइल पे आ जाएं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टेप, आप फाइल यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप स्टेप इन करते जाएंगे और आपको सारी चीजें नजर आती जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने स्टेप इन किया तो आपने देखा कि आपकी बहुत सारी विंडोज यहाँ पे आपके यहाँ पे खुल गई। ठीक है, अब एक एक विंडो हम डिस्कस करेंगे और किस क्या डिस्कस कर रही है और क्या इसके फायदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है डिसअसेंबली। ठीक है, डिसअसेंबली क्या होता है, डिसअसेंबली में आपका जो कोड की जो इक्विवेलेंट हेक्स फाइल बनती है, सॉरी आपकी जो सी कोड की आपकी असेंबली फाइल बनती है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लाइन लिखी सी में, और इस सी लाइन को अगर आप असेंबली में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये आपने लाइन लिखी तो आपका ये बन जाएगा, अगर आपने ये लाइन लिखी तो इसका ये बन जाएगा, तो आपकी इक्विवेलेंट सारे इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज कोड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा फॉर एग्जांपल आप ये आपकी मेन फाइल है। ठीक है, और ये आपका पार्ट जो शो कर रहा है ये बेसिकली आपका मेमोरी शो कर रहा है। ठीक है, आप इसमें फ्लैश मेमोरी इज ए प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, और आप इसमें डेटा मेमोरी दे सकते हैं, आप डबल EEPROM दे सकते हैं, दूसरी चीजें देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे आपने जब
फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी सेलेक्ट की है कि फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपका कोड है। ठीक है, ये जो कोड अभी अपने अपने फ्लैश में आप भेजेंगे तो फ्लैश में किस जगह पे पड़ा होगा, ये फ्लैश में इस जगह पे पड़ा होगा। ठीक है, वहां पे लिखा था कि आपकी प्रोग्राम ने कितनी मेमोरी एलोकेशन की है, कितने बाइट्स की, 32 4.6 मे बी। कितनी? सर वो 4.6 एलोकेशन हुई थी ना, मतलब 124 समथिंग बाइट्स की थी। 124 बाइट्स। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल इनको यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको काउंट करेंगे, ये 124 बाइट्स होंगे। ठीक है, ये एक बाइट है, 0C इज हेक्साडेसिमल नंबर, ये एक बाइट है, ये दूसरी बाइट है, तीसरी बाइट है, ये उसकी एड्रेसेस हैं। ठीक है, ये उसकी एड्रेसेस हैं, ये उसकी बाइट्स हैं, और ये उसके कैरेक्टर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस नंबर को किसी कैरेक्टर में डिनोट करें, अब इसको बंद कर दें तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपकी मेमोरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये आपका प्रोग्राम है जो आपने लिखा है। ठीक है, और हाउ मच स्पेस इट इज एलोकेटिंग इन फ्लैश मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी 124 बाइट्स। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इसकी डेटा मेमोरी देखना चाहते हैं तो आप इसके डेटा रजिस्टर्स में चले जाएंगे। ठीक है, डेटा रजिस्टर्स, ये आपके डेटा रजिस्टर्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको स्टेप एंड करते जाएंगे और ये आपको, अच्छा इसके बाद आप आईओ पे आ जाएं। आईओ पे क्या आएगा, जितने भी आपके आईओ रजिस्टर से सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, और उसमें से एडीसी के रजिस्टर्स हैं, उसमें डबल ई प्रॉम के हैं, उसमें एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं, उसमें आईओ रजिस्टर्स हैं, उसमें टाइमर्स, काउंटर्स, यूएसआरटी, सारे रजिस्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अब किसके साथ डील कर रहे हैं, हम पोर्ट बी के साथ डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पोर्ट बी। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि पोर्ट बी से रिलेटेड जितने भी रजिस्टर होते हैं, पिन रजिस्टर, डीडीआर रजिस्टर, पोर्ट रजिस्टर, वो सारे उनकी वैल्यूज और उनकी एड्रेसेस आ गए। ठीक है, तो पिन बी की क्या एड्रेस है, 36, डीडीआर की 37 और इसकी 38, और उसकी वैल्यूज अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अभी हम किस मोड में हैं, अभी हम डीबग मोड में हैं। ठीक है, सिमुलेशन कर रहे हैं और डीबग मोड में। ठीक है, अब देखा कि जैसे ही यहाँ से ये एग्जीक्यूट हुआ और ये कर्सर यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या एग्जीक्यूट हो गया, DDR-B इज इक्वल टू FF। तो आप ये देखेंगे DDR की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0FF, और ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये सारे 1 शो कर रहे हैं। ठीक है, ये बिट 1, बिट 1, बिट 2, बिट 3। ठीक है, रेट किसको शो कर रहा है, 1 को शो कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पोर्ट बी। अब जैसे ही पोर्ट बी एग्जीक्यूट होगा तो Z की जो वैल्यू होगी वो पोर्ट बी के पास चली जाएगी। ठीक है, अब इस वक्त Z की क्या वैल्यू थी, 0। 0। पहली इटरेशन में Z की वैल्यू 0 थी और वो चली गई पोर्ट बी में। इसी वक्त पोर्ट की बी की वैल्यू इनिशियली भी 0 थी, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट इटरेशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेशन में वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, मैंने दो इटरेशन, सॉरी 3 इटरेशन चला दी। ठीक है, 0 0 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेशन चलाते हैं, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, और 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब ये इटरेशन चल रही है। ठीक है, जितनी ये फॉर लूप की इटरेशन, हर एक इटरेशन के बाद काउंट इंक्रीमेंट हो रही है, और वो इंक्रीमेंट कहाँ पे जा रही है, पोर्ट बी पे जा रही है। अच्छा, आपने देखा होगा जो वैल्यू पोर्ट बी के पास जा रही है वही वैल्यू पिन बी के पास भी जा रही है। ठीक है, ये क्यों है, बताएंगे मुझे। सर क्योंकि सर यही सर हमारा इनपुट है ना सर, जो आउटपुट पे शो हो रहा है पोर्ट बी पे, क्योंकि ये मतलब अपने अपने आप से ये ले रहा है वैल्यू, हमने कोई भी असाइन नहीं की हुई है वैल्यू। ठीक है,
हमने वैल्यू दी है पहले z को और z से वैल्यू दी है पोर्ट बी को, ठीक है। अब पोर्ट बी में जो वैल्यू हम रखते हैं और उसके साथ हमने अगर हमने डायरेक्शन ऑफ द पिन आउटपुट किया हुआ है तो जो पोर्ट बी की वैल्यू होगी वो पिन पे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो हम पिन की तो वैल्यू देख नहीं सकते, ठीक है। वरना क्या करते, हम एक एलईडी लगाते हैं और उससे पता चलता है कि हमारी हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास पिन नहीं है, ठीक है। तो पिन नहीं है तो हम किसको देख सकते हैं, सिर्फ पोर्ट बी को देख सकते हैं, ठीक है। मगर आपने स्लाइड में देखा था कि जब वैल्यू बाहर जाती है ट्राई स्टेट बफर से निकल के, उसके बाद उसका कनेक्शन हो जाता है पिन रजिस्टर के साथ, ठीक है। जो वैल्यू डायरेक्टली जो पिन को जाएगी वो पिन, सॉरी, जो वैल्यू पिन के पास जाएगी वो पिन रजिस्टर के पास भी चली जाएगी। बीच में कोई स्विच नहीं है जो उसको रोके कि भाई ये वैल्यू पिन पिन बी रजिस्टर में ना जाए, ठीक है। मैं आपको फिर डायग्राम दिखा देता हूँ, शायद आप भूल गए ये डायग्राम। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, स्लाइड्स नजर आ रही हैं नो सर। अभी? यस सर, यस सर। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, हमने जेड में वैल्यू रखी, जेड से हमने पोर्ट में दे दी, पोर्ट बी रजिस्टर में, ठीक है। और इसको हमने कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई ये वैल्यू बाहर चली जाए, एज ए आउटपुट कॉन्फ़िगर कर दिया। जब ये वैल्यू बाहर जाएगी तो बाहर भी जाएगी और इस तरफ भी आएगी, ठीक है। यस सर, समझ गया। अब समझिए, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इसलिए जो वैल्यू बाहर जाएगी वो पिन बी के पास भी आएगी, तो इसी वजह से जो वैल्यू पोर्ट बी में आ रही है वो पिन बी में भी आ रही है, ठीक है। मगर ऐसे कभी नहीं हो सकता कि इसको अगर आप एज इनपुट यूज करें तो वो वैल्यू जो बाहर से आए वो इसके पास भी जाए, इसके पास भी जाए, नहीं, क्योंकि उस वक्त ये ओपन सर्किट हो जाएगा और इसके पास वैल्यूज नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके पास वैल्यूज जाएंगे, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं एटमल पे, ठीक है। तो हमने आईओ रजिस्टर देख लिए, हमने मेमोरी देख ली, ठीक है। चलो मेमोरी मेमोरी देखते हैं, ठीक है। आप इसको नो टेक्स्ट से आप एएनएसआई टेक्स्ट पे कन्वर्ट करें, ठीक है। और आप फॉर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि ये जो डेटा है आपकी चेंज हो रही है पोर्ट बी पे, वो आप मेमोरी में भी देखना चाहते हैं कि डेटा मेमोरी में आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो आप इसको चलाएं, ठीक है। और आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये 17 यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। और ये 17 जब आप, ये 17 का क्या मतलब है, 17 पिन नंबर है सर ये, जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हुआ। हाँ ऐसा 17 नंबर हो सकते हैं सर, कोई भी मतलब इंटीजर में जो मतलब हम कन्वर्ट करेंगे बिट्स बाइनरी में जो होगा हमें एलईडीज आउटपुट पे। हाँ, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ वो रजिस्टर हैं जो सिर्फ आईओ रजिस्टर्स हैं, ठीक है। और ये पूरी मेमोरी का मैप है, ठीक है। जो जितनी भी डेटा मेमोरी है, जिसमें एस रैम आ गई, जिसमें दूसरी मेमोरीज आ गई, डबल रोम आ गई, सारी मेमोरीज का मैप है, ठीक है। अब मैं आपको पता चल गया कि भाई जो मेरा पिन बी रजिस्टर है या पोर्ट बी रजिस्टर है या डीडीआर बी रजिस्टर है, उसकी एड्रेस क्या है, उसकी एड्रेस है 36, 37, 38। आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और आप यहाँ पे लिखेंगे 0036, ठीक है। जैसे 0036 लिखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 0036 आ जाएगा, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देख लें 0036 पे क्या पड़ा हुआ है, 17 हेक्साडेसिमल पड़ा हुआ है, 37 पे FF पड़ा हुआ है और अगेन 38 पे 17 पड़ा हुआ है। ठीक है, सो यू कीप चेंजिंग, आप यहाँ से इसको चलाते जाएं, काउंटर को चलाते जाएं, आपकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट कि भाई इसमें कौन सी प्रोग्राम मेमोरी है, कौन सी डेटा मेमोरी है, और डेटा मेमोरी में कौन से रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं इस सारे प्रोग्राम में। यस सर। ओके, सो हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करते, अभी हम इसको प्रोसेसर स्टेटस भी हमें डिस्कस करना था। ठीक है, ये अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस क्लास को हम फिनिश करते हैं यहाँ पे। एंड मीनवाइल बिफोर द नेक्स्ट क्लास, मे बी बिफोर नेक्स्ट क्लास हम 1-2 दिन में हम अरेंज करें। ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट क्लास you are supposed to install this software। ठीक है, और इसमें आप जाके और चैप्टर नंबर 7, ठीक है, ये बुक मैंने अपलोड कर दी है LMS पे, चैप्टर नंबर 7 पे जाएं और इसका एग्जाम्पल नंबर 2 और इसका एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1, इन सब की प्रैक्टिस करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जैसे हम आए तो आपने ये सारी प्रैक्टिस की, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और पूछूंगा ओके सर। बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई ये चीज क्यों है, ये चीज क्यों नहीं है। ठीक है, सर ये सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा उसमें? बहुत छोटा सॉफ्टवेयर, क्रैक वगैरह की वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर, वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर।